Good morning. I'm Dr. Surya Shaheen. Today I will discuss a topic from research aptitude, and the topic is non-probability sampling. I have already made a lecture on probability sampling and the types of probability sampling, and today I will discuss the types of non-probability sampling. You must know about non-probability sampling. In UGC NET examination, they also ask you question from this unit. And if you are doing PhD research, then you must know this topic. Clear? What is non-probability sampling? In non-probability sampling, there is no chance for every member of the respondent to be selected for research study. नॉन-प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर उन्हीं मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए जो उस रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और जो लोग उस रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता है रिसर्च स्टडी के लिए. क्लियर? सो दिस इज नॉन-प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? What we find in the probability sampling that there is an equal chance for every member of the participants to be selected for research study. Probability sampling में respondents के जितने भी members होते हैं उन सब का equal chance होता है sample में select होने का. Now I talk about the types of non-probability sampling, and first is convenience sampling. What is convenience sampling? Convenience sampling is also called grab sampling, availability sampling, accidental sampling, etc. Sometimes in UGC NET examination they also ask you this type of question. If there is the other name of that theory, the multiple names of that theory you must remember. So what is? They may ask you question. Convenience sampling is also called what? Convenience sampling is also called grab sampling, availability sampling, accidental sampling, etc. So remember these points. Under the convenience sampling, the researcher collects the required data from the respondents who are conveniently available. मतलब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रिसर्चर के पास जो रिस्पोंडेंट्स कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है, जो रिस्पोंडेंट्स इजीली अवेलेबल होता है, रिसर्चर उन्हीं से डाटा कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है, मगर उसका रिस्पोंडेंट्स काफी दूर दूर रह रहा है, तो जो रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर के काफी नजदीक होगा, रिसर्चर उन्हीं रिस्पोंडेंट्स से डेटा कलेक्ट कर लेगा. इस सैम्पलिंग में कॉस्ट कम लगता है और यह फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक है. क्लियर? नेक्स्ट इज जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग. जजमेंट or purposive sampling is also called authoritative sampling, selective sampling, subjective sampling. Now I talk about what is judgment sampling. In this sampling technique, the researcher defines a criteria in his mind. What type of respondents he needs to collect the data. In this sampling technique, the researcher selects the respondents based on his knowledge and judgment. मतलब रिसर्चर अपने माइंड के अंदर एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि उसे किस तरह के रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करना है, और उन्हीं रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं जो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं. जैसे वह माइंड मेकअप करेगा कि सैम्पलिंग के किस पार्टिकुलर एज ग्रुप के रिस्पोंडेंट्स चाहिए रिसर्चर को. जजमेंट सैम्पलिंग इज इजी एंड कॉस्ट अफेक्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक. यह सैम्पलिंग बायस्ड भी हो सकता है क्योंकि यह रिसर्चर के जजमेंट पे निर्भर करता है. हो सकता है कोई पर्सन उस रिसर्च क्राइटेरिया पे फिट बैठता है मगर रिसर्चर उससे डाटा कलेक्ट ना करे क्योंकि
या सैम्पलिंग रिसर्चर के जजमेंट पे निर्भर करता है। इस वजह से इस सैम्पलिंग में एरर आने की चांस होती है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। दिस इज थर्ड। In quota sampling technique, the entire population is divided into groups and then quota is assigned against each group. First, the quota is assigned to each group, then sample is selected on convenience or personal judgment. इसमें रिसर्चर एंटायर पॉपुलेशन को कई ग्रुप्स में डिवाइड करता है और फिर हर ग्रुप में से एक कोटा फिक्स कर देता है कि इस ग्रुप से इतना परसेंट, इस ग्रुप से इतना परसेंट, इस ग्रुप से इतना परसेंट रिस्पोंडेंट्स लेंगे। इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स लेते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर ने ग्रुप्स बना लिया ना, मेल्स का अलग, फीमेल्स का अलग, एम्प्लॉयड का अलग और एज ग्रुप्स के बेस पे अलग, कई तरह के ग्रुप्स को बना लिया। अब उसमें कोटा असाइन करते हैं। फिर उस ग्रुप से जो रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर के नजदीक होंगे या इजिली एक्सेसिबल होंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा रिसर्च के लिए। मतलब कोटा सैम्पलिंग में एंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हर ग्रुप के साथ डिफरेंट परसेंटेज अलोकेट करेंगे और फिर उस ग्रुप के अंदर से कॉन्वेनियंस या जजमेंट के बेस पे रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। एज द टाइटल इंडिकेट्स, snowball sampling technique is a sampling technique in which the researcher selects one or two respondents first and these respondents refer or identify other respondents. The researcher continuously selects respondents based on referral until required sample size is achieved. Snowball sampling is also called chain sampling, referral sampling, network sampling and friend to friend sampling. Keep in mind these points. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्नोबॉल मतलब जो बर्फ का गोला होता है, अगर उसे ग्लेशियर से फेंका जाता है तो जैसे जैसे वह आगे जाता है, रोल होता है, वैसे वह बड़ा से बड़ा होता जाता है। स्नोबॉल टेक्निक भी कुछ इसी थियरी पे वर्क करती है। इसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर फर्स्ट वन और टू रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है और फिर जानकारी पता करता है उस रिस्पोंडेंट से कि उसे उसी तरह का डेटा किस इंडिविजुअल से मिलेगा, मतलब किस रिस्पोंडेंट से मिलेगा। यानी रिसर्चर फर्स्ट रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई करके उससे डाटा कलेक्ट करेगा और फिर फर्स्ट रिस्पोंडेंट ही रिसर्चर को सेकेंड रिस्पोंडेंट के तरफ रेफर करता है कि वहां से उसे डाटा मिल जाएगा। फिर सेकेंड रिस्पोंडेंट थर्ड रिस्पोंडेंट के बारे में रिसर्चर को रेफर करता है और इस तरह से वह डाटा फिर वहां से कलेक्ट करता है। यानी कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वह सेकेंड रिस्पोंडेंट के बारे में बताता है, सेकेंड थर्ड रिस्पोंडेंट के बारे में बताता है और थर्ड फोर्थ रिस्पोंडेंट के तरफ रेफर करता है और इसी तरह से यह चेन चलता रहता है जब तक कि डिजायर्ड सैंपल साइज अचीव नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। थैंक्स फॉर टुडे।